اس یادگاری تقریبات کے صدر ذی وقار جناب شفیق مشہدی صاحب علی اللہ حدیث صاحب کی تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے کہ یہاں تشریف لائے۔ جناب ریاض عظیم آبادی صاحب، جناب ڈاکٹر اختر آزاد صاحب، سید شکیل حسن ایڈوکیٹ صاحب، جناب پروفیسر علی اللہ علی صاحب، جناب اسلم جاویدار صاحب اور سہیل عظیم آبادی کی پوتی مسرت فاطمہ، جناب وجیہ الدین ایڈوکیٹ صاحب، محبوب عالم صاحب، ارمان نظمی صاحب، جناب پروفیسر صدیق صاحب، فاروق احمد صدیقی صاحب، سرور صاحب، نسیم احمد صاحب اور تمام محبان اردو طلباء و طالبات، اس تقریب میں آپ سب کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ پیچھے کیمرہ ہے۔ بہت دنوں سے لوگوں کی خواہش تھی اور ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اردو اکیڈمی میں پروگرام کا انعقاد کیا جائے۔ پروفیسر علی اللہ علی صاحب نے بھی بارہا کہا کہ وہ بہت دور پڑتا ہے اور اردو آبادی سے دور ہے، لیکن تجربات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوری طے کر کے لوگ جانا پسند کرتے ہیں اور اب اس جگہ کو یہاں سے زیادہ آباد کر رکھا ہے اردو آبادی نے۔ یہ محبت ہے اردو آبادی کی کہ پٹنہ سٹی سے وہاں ابھیلیکھ بھون میں پہنچتے ہیں۔ آج یہاں ہم لوگ 10 بجے سے پروگرام رکھا تھا اور ہم وقت پر شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وقت پر ختم ہو اور وقت پر شروع ہو، لیکن ہم لوگ کے مزاج میں جو تاخیری ہے، جو دیر کرنے اور دیر ہونے اور دیر سمجھنے کی بات ہے، وہ جاتی نہیں ہے۔ ہمارے بچے بھی اسی طرح سے صبح میں اٹھتے ہیں اور اسی طریقے سے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ تو برخیر آج 3 اہم شخصیات پر اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ علامہ شوق نیموی، جناب سہیل عظیم آبادی اور اجتبا رضوی۔ اردو ڈائریکٹریٹ کی طرف سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اجتبا رضوی صاحب کو پہلی دفعہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی اہم شخصیات جن کا کارنامہ اردو میں رہا ہے وہ سب یاد کیے جائیں گے اردو ڈائریکٹریٹ کی طرف سے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم جو اکابرین ادب ہیں جو ابھی ہیں ان پر بھی پروگرام انعقاد کریں گے، ان کے بھی افسانوی مجموعے، ان کے بھی شعری مجموعے پر باتیں ہونی چاہیے اور اہل ادب کے سامنے یہ باتیں آنی چاہیے۔ تو یہ تو مستقبل کا پروگرام ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ حقیقت ہم لوگ کا مطلب اور مقصد ہے کہ ایک تو ہم اپنے اسلاف کو یاد کریں، لوگوں کے ذہن میں یہ بات جائے اور جانے کہ اجتبا رضوی کون تھے، شوق نیموی کون تھے اور جمیل مظہری کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کس صنف میں انہوں نے شہرت حاصل کی اور کون سی کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اردو کا فروغ ہو، ہمارے بچوں تک اردو کی باتیں جائیں، ماحول پورے بہار میں اردو کا ماحول بنے، اس کی فضا ہموار ہو، ذہن سازی ہو۔ اخبار کے ذریعے سے کم 7 اخباروں میں سرکاری طور پر اس کا اشتہار آتا ہے۔ ہندوستان میں بھی دینک جاگرن کے ذریعے بھی، بھاسکر کے ذریعے بھی اور تمام اردو اخبارات کے ذریعے سرکاری طور پر اشتہارات آتے ہیں۔ گاؤں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ سہیل عظیم آبادی یاد کیے جا رہے ہیں، شوق نیموی یاد کیے جا رہے ہیں۔ تو
याद करना और उर्दू की तरक्की के लिए हम आगे बढ़ना, काम करना, यही इसका मकसद है। लेकिन तालिब इल्मों को इसमें आगे आने की जरूरत है और जो हमारे अकाबिरीन है, जो असातिज़ा कराम है, उनसे गुजारिश है कि वो सही मानों में अमली तौर पर कुछ करें। सिर्फ तनकीद करने से कि बिहार सरकार या उर्दू डायरेक्टरेट या फला तंजीम के जरिए उर्दू की तरक्की के लिए क्या किया जा रहा है, काम करने को नहीं। अमली तौर पर आप देखिए, सब लोग सोचे कि हमारे घर में क्या हमारे बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं, क्या हमारे बच्चे साइंस पढ़ें और साइंस में अव्वल आए, दूसरी जबानों को भी पढ़ें, हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, मगर साथ साथ ये सब्जेक्ट उर्दू तो पढ़ें। अभी ये 3 सेशन पर मुश्तमिल है। पहला हम लोग सुहेल अजीमाबादी पर, दूसरा सेशन शौकनीवी पर, तीसरा सेशन और ये इस्तवा रिजवी पर, उसके अलावा बज़्म मुशायरा या बज़्म सुखन भी है। उसके बावजूद देख लीजिए कि हम यहाँ कितने मौजूद हैं। तो हमारे जो दानिश्वर हज़रात हैं और जो जिनका उनके साथ रहना हुआ है, वो इसके बारे में तफसील से आपके सामने बातें रखेंगे। हम कह सकते हैं कि अब बैठ जाओ भाई, जो आ गए वो बैठ जाइए, आप बंद कर दीजिए ये दरवाजा। कि सुहेल अजीमाबादी एक बड़े तख्लीकार, एक अफसाना निगार और कई तमाम सुखन में उन्होंने तबाह आजमाई की, लेकिन बुनियादी तौर पर उनकी शोहरत अफसाना से हुई। सरजमीन बिहार पर खुदा का अतिया रहा है कि हर जमाने में उर्दू अदब के नाबगैर रोजगार होते रहे और अभी भी बहुत अहम शख्सियत इस अजीमाबाद में है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उनकी कदर करें और उसकी कदर को हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, पूरी उर्दू दुनिया में पहुंचाएं। इन फनकारों ने उर्दू अदब के दामन को बेशकीमती मोतियों से भर दिया है। इसके अलावा और कलमकारों ने इसे और वुसअत अता फरमाई। इसी कारवान के में शामिल सुहेल अजीमाबादी भी। सुहेल अजीमाबादी की अदबी खिदमत हैं, साथ ही उर्दू की तरक्की के लिए जो खिदमत है वो हम सब के लिए दर्स और सबक है। रांची जाकर उर्दू के लिए नागपुर उर्दू फरोग उर्दू इदारा कायम किया, शबीना स्कूल चलाए और आदिवासियों को उर्दू पढ़ना लिखना सिखाया। इस तरीके से उर्दू को बढ़ाने में, फैलाने में अमली तौर पर जाती कोशिश की। उन्होंने अफसाने के जरिए, कहा जाता है कि उनके अफसाना पर प्रेमचंद का रंग गालिब है। सादा और सही जुबान में वो नौजवानों को नसीहत देते हुए नजर आते हैं। साथ ही इस्लाह मुआशरा उनका मकसद रहा है। वो अलाव के जरिए नौजवानों को धूप तापते हुए आगे की मुस्तकबिल को संवारने के लिए अज़्म करने का पैगाम देते नजर आते हैं। बहुत सारी तस्नीफात हैं उनकी। अफसाने में जैसे अलाव अफसानी मजमूआ है, नए पुराने चार चेहरे, बेजड़ के पौधे, ड्रामे अनारकली, नैना जोगन वगैरह।
मैट्रिक पास नहीं किया, सनद हासिल नहीं की, लेकिन इल्म हासिल किया और इल्म में वो मर्तबा हासिल किया कि सरकार में रेडियो में, आकाशवाणी में उनको नौकरी मिली। हमारे बच्चे सनद हासिल कर लेते हैं, बीए पास कर लेते हैं, लेकिन इल्म की कमी होती है जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि अगर इल्म हो तो हर हालत में रोजगार उनको मिलना ही, इल्म वाला बनना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, कंपटीशन में आना पड़ेगा। अभी उर्दू डायरेक्टरेट के तहत 1505 पोस्ट के लिए इस बिहार स्टाफ सेक्शन के कमीशन के जरिए वैकेंसी निकाली गई है। अभी 30 अक्टूबर तक आखिरी उसकी तारीख है, 30 नवंबर तक आखिरी तारीख है। लेकिन अभी तक तमाम तलबा हमसे सवाल ही पूछते रहते हैं, अरे अब 2 दिन बचे, पहले फार्म तो भर लीजिए, फार्म भरने के बाद फिर तैयारी तो शुरू कीजिए। कोई पूछते हैं कि इसमें मुज़क्कर बोनस क्यों रख दिया, ये तो बहुत भारी चीज है, पुराने जमाने में लोग याद करते थे। अब तो असलियत का भी इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि इसमें बेईमानी की गई है। ये तो सिर्फ उर्दू का 2 पर्चा है, 2 सवालनामा पर ये इस कंपटीशन का होना है, एक उर्दू ग्रामर और एक उर्दू ट्रांसलेशन। 100 नंबर का उर्दू ग्रामर है और उसमें मज़मून नवीसी है, मुख्तसर नवीसी है, उसके अलावा ग्रामर है। दूसरा पेपर ट्रांसलेशन का है, 40 नंबर उर्दू से हिंदी है और 40 नंबर हिंदी से उर्दू है, 10 नंबर अंग्रेजी से उर्दू है, 10 नंबर अंग्रेजी से हिंदी है। तो इतनी तैयारी तो होनी चाहिए। तो तैयारी, और ये सिर्फ उर्दू में क्वेश्चन, उर्दू का सवाल, उर्दू का जवाब, उर्दू में जवाब, फिर भी घबरा रहे बहुत लोग, बहुत तरह के सवाल करते रहते हैं। आगे आने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है कि बगैर सनद के भी आलमी सतह की शख्सियत सैयद सुहैल अजीमाबादी हमारे सामने हैं, उनसे सबक लेने की जरूरत है कि किस तरह अपनी इल्मी सलाहियत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में, उर्दू दुनिया में अपना सिक्का जमाया। उनका घर पूरे हिंदुस्तान के उदबा और शोरा की जायगाह और जायगाम बनी हुई थी। आज उसी तरीके से कोई शख्सियत तो ऐसी सामने आए जहां तमाम पूरे हिंदुस्तान के लोग उदबा शोरा आए और बिहार का लोहा मानने को तैयार, बिहार की अजमत का एहसास करें, इसकी जरूरत है। इसी तरह से अल्लामा शौक़ निम्बी की बड़ी खिदमत हैं, अरबी, फारसी, उर्दू सभी में वो एक जय्यद आलिम और मोतबर शायर, अजीमुल मर्तबत शायर थे। आसानुस्सुनन ही काफ़ी है उसकी अजमत के पहचान के लिए कि तमाम मदारिस में वो किताबें पढ़ाई जाती रही और यह सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि काहिरा में और दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी ये निसाब में दाखिल थे। शौक़ निम्बी जो इस सरजमीन के थे। उसी तरीके से इस्तवारिज़वी आप सब जानते हैं, उनसे वाकिफ़ हैं कि वो छपरा में पैदा हुए, तालीम हासिल की, एमए उर्दू से किया, फारसी से किया, उर्दू के लेक्चरर हुए राजेंद्र कॉलेज छपरा में। फिर उनको मौका मिला प्रिंसिपल की हैसियत से उन्होंने मिल्लत कॉलेज दरभंगा को संभाला और आज जो इस कॉलेज की हैसियत है उसमें उनका बड़ा ताउन और कह सकते हैं कि बड़ा योगदान रहा है। अपने शख्सी और ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर डॉक्टर जाकिर हुसैन से उसकी इमारत के लिए और रकम दिलवाकर उसकी इमारत बनवाई और उसको ये शक्ल दिया। तो बड़ा कारनामा रहा है। उनकी शायरी का एक मजमूआ शाये हुआ है और इस तवाज़ुई पर अगर
कोई भी रिसर्च स्कॉलर, कोई भी उर्दू का तालिब इल्म या कोई उर्दू से मोहब्बत रखने वाला, अगर कोई काम उनके बचे हुए अदबी कारनामे को यकजा करके एक जगह वो किताब की शक्ल दे, थीसिस की शक्ल दे, तो उसमें उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से उन्हें ताउन दिया जाएगा, पूरा ताउन दिया जाएगा इस कामों के लिए। तो जरूरत इस बात की है कि हम बेजा शिकायत से शिकवा से बचे और उर्दू की तरक्की के लिए जिनसे जो हो सके वो करें, अमली तौर पर करें। अमली तौर पर यह है, हम लोग स्कूल में जाते हैं, अभी हाल यह है कि स्कूल में एक छोटी सी बात कह देते हैं सर कि किस तरीके से अभी हम एक लिस्ट बना रहे हैं हर जिला में उर्दू टीचर्स का। एक जमुई जिला से पूरी लिस्ट किताब की शक्ल में आगे हर जिला में एक किताब शाया हो रही है उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से। तो 700 जमुई जिला के 700 उर्दू टीचर की लिस्ट आई है। वहां क्या होता है, हर साल स्कूल में बच्चों का सर्वे होता है 1 से 8 तक के बच्चों का, कि वो उर्दू छात्र हैं या हिंदी छात्र हैं। तो अभी मुजफ्फरपुर की बात बताए कि वहां के डीपीओ ने, अंसारी साहब ने शुरू में ये किया कि जो उर्दू के तालिब इल्म हैं उसको उर्दू वाले खाने में रखा। अगर उर्दू की जितने उर्दू के तालिब इल्म होंगे उस स्कूल में 40 तालिब इल्म पर एक उर्दू टीचर का पोस्ट अपने आप क्रिएट हो जाता है। और अगर वो 40 अगर नहीं है तो वहां वो अगर उर्दू पोस्ट होते हुए भी फिर आइंदा साल के लिए वो उर्दू पोस्ट नहीं रहता है। इनके जाने के बाद वहां के कुछ बीओ ने तमाम उर्दू तालिब इल्मों को हिंदी भाषी छात्र ऐलान कर दिया। अब वहां जब 3000 पोस्ट था वो पोस्ट 700 पर आ गया। एक मर्तबा लोगों की नजर खुली और फिर यही डीपीओ साहब जब दोबारा पोस्टिंग हुए तो उनको याद आया कि हमारे जमाने में सर्वे के मुताबिक 3700 पोस्ट था, आज ये सिर्फ 700 पोस्ट कैसे रह गया। तो एक दफा फिर सर्वे कराया गया तो मालूम ये हुआ कि तमाम तालिब इल्मों को हिंदी छात्र हिंदी तालिब इल्म करके उर्दू की पोस्ट खत्म हुई। तो पूरे बिहार के तमाम स्कूलों में इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। ये वो गार्जियन भी कहते हैं कि अच्छा क्या होगा, ये हिंदी है तो पढ़ना तो हिंदी है, आगे भी जाके पढ़ना हिंदी है, तो अगर हिंदी कर दिया तो क्या हो गया। लेकिन कितना बड़ा नुकसान हुआ कि कल होकर के उर्दू टीचर की पोस्ट नहीं रहेगी और वहां नहीं है। तो जो उर्दू तालिब इल्म है पूरे बिहार के तमाम गार्जियंस को, तमाम दानिश्वरान को और तमाम तालिब इल्म को भी इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि अगर 40 लड़का है या 60 लड़का है तो कम से कम उसके सामने उर्दू स्टूडेंट्स भरा जाए। अगर हिंदी भरा गया तो वहां उर्दू का पोस्ट आगे साल के लिए खत्म हो गया। वहां बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में महकमे तालीम में यही कानून है कि जितने तालिब इल्म होंगे 40 पर एक उर्दू टीचर का पोस्ट क्रिएट होगा। तो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। सुहेल आज़िमाबादी ने जिस जज्बे के साथ उर्दू की खिदमत के लिए यहाँ से सफर करके रांची गए और वहाँ रात में शबीना स्कूल चलाया, रात में इस उर्दू पढ़ाने का इंतजाम किया, इससे बड़ा फायदा हुआ। आदिवासियों ने भी उर्दू सीखी। हम सब का फरीजा है कि अगर हम इन्हें खराब अकीदत पेश करें तो कम से कम आप उर्दू के लिए कुछ काम करें, कुछ सोचें। और जो कोई भी अगर उर्दू के लिए कुछ भी काम कर रहा है तो हमारा ये भी फरीजा है कि हम उसकी हौसला अफजाई करें और उसको आगे बढ़ाने के लिए दुआएं दें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।